I thank all my friends from the banking sector who supported state government initiative. This will increase investors' confidence. We not only invite investment but also facilitate credit investment. This is what the new initiative we have taken. I foresee the new model of economic development and resurgence taking place. I see Gujarat taking India into the 21st century as a super economic power. Gujarat has become a global player. Very responsible way. I would like to repeat, Gujarat has become a global player. This summit has proved, ladies and gentlemen, this summit has proved that Gujarat has a strong fundamentals. Gujarat has a cross threshold point. Whether it is a manufacturing, agriculture or a service sector, Gujarat is capable of converting adversities into the opportunity. Gujarat lowers the cost and minimize your risk and enhance efficiency. And this is what I said yesterday, race. Today, Anil gave another word to race, and particularly he gave a lot of credit to me. Thankful to Anil. Of course, he's my good friend. Sometimes he showers the flowers. Gujarat can produce world-class physical and social infrastructure. Gujarat have evolved a global platform for investors. Gujarat will give a sustainable economic development model to other developing countries. And this is what in 2011, my words, you will feel that I have proved that in 2011, for the developing countries, Gujarat will be the model. Once again, I thank all of you who have served the commitment, investment in Gujarat. I promise that your faith and confidence in Gujarat will be fulfilled to the utmost satisfaction. People of Gujarat and my government are committed to these promises. You are now part of our family. I always say, the 55 million Gujaratis in my family. Now you are a part of my family. It is now our responsibility to see that our business experience in Gujarat must be smooth and pleasant. As I said yesterday, we will meet in 2011 for another investor summit. But we will make it a vibrant Gujarat, will be the golden Gujarat. मित्रों, किसी जमाने में ऐसा कहा जाता था कि परमात्मा को 100 भुजाएं थी। कभी कहते थे कि ईश्वर को 1000 भुजाएं थी। सहस्त्र बाहु वाला परमात्मा हुआ करता था। मित्रों, मैं इस समिट की सफलता के बाद ये कह सकता हूं कि मेरी सरकार के पास 10 लाख भुजाएं हैं। मेरे सभी सरकार के मेरे कर्मयोगी, मेरे कर्मचारी मित्र, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के चपरासी तक की मेरी टोली, ये 10 लाख बाहु है, 10 लाख भुजाओं वाली सरकार है। ईश्वर के पास सहस्त्र बाहु होंगे, इस सरकार के पास 10 लाख बाहु हैं। उन 10 लाख बाहुओं का परिश्रम है, उन 10 लाख भुजाओं का पुरुषार्थ है। ये मेरे साथियों ने दिन रात काम किया है। मैं आज देख रहा था, मेरे कई आईएएस अफसर घंटों तक सेमिनार में लगातार कमेंट्री दे रहे थे। शायद वो आईएएस अफसर बने होंगे तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी काम उनको करना पड़ेगा। और आज वे कर रहे थे।
जब आज वो कर रहे थे, मैं उनके चेहरे पर देख रहा था, मैं उनके उत्साह को अनुभव कर रहा था और मैं देख रहा था वो भी सोचते थे कि इतने बड़े महान कार्य के हिस्से बनेगा, शायद ईश्वर ने उनको निमित्त बनाया है। ये जो पुरुषार्थ और परिश्रम मेरे इन सभी साथियों ने किया है, मैं इस सार्वजनिक मंच पर से उनका अंतःकरण से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, क्रेडिट तो मुख्यमंत्री को मिल जाती है, तस्वीर अखबार में मुख्यमंत्री की छप जाती है, टीवी के स्क्रीन पर शायद मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं, लेकिन ये सब तब संभव होता है जब ये लाखों लोग एक विश्वास के भरोसे अपने आप को खपा देते हैं, जी जान से एक मिशन के रूप में लग जाते हैं। मैं श्रीमान राजगोपाल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं एक क्षमा याचना भी करना चाहता हूं। हमारी जितनी ताकत थी इस सभागृह को बड़ा बनाने की हमने कोशिश की, लेकिन कल इस सभागृह के बाद 2 और सभागृह खोल दिए गए। वहां वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर कार्यक्रम दिखाने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी जगह कम पड़ गई, क्योंकि हमने 20,000 डेलीगेट की कल्पना नहीं की थी। और ऐसी समिट में 20,000 डेलीगेट का आना और पूरा समय रहना, मित्रों, ये अपने आप में, जैसा सुनील बता रहा था, अपने आप में मित्रों, जैसा उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऐसी समिट नहीं देखी। मित्रों, 3 समिट देखने के बाद 4थी समिट में मुझे कहना पड़ रहा है मैंने भी ऐसी समिट नहीं देखी। मित्रों, जापान पार्टनर कंट्री के रूप में हमारा आए और आप पहली बार देख सकते हैं। मित्रों, डेवलपिंग कंट्रीज की तो दोस्ती संभल है। क्या कभी किसी गरीब बेटी अमीर के घर में शादी हुई सुना है क्या? क्या कभी गरीब की बेटी अमीर के घर में गई तामझाम से? मित्रों, गुजरात एक डेवलपिंग कंट्री का छोटा सा हिस्सा और जापान दुनिया का सबसे डेवलप देश, उसका हमारा रिश्ता बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत है। मित्रों, उस राज्य की इज्जत होती है तब होता है। इटली दुनिया का इतना बड़ा डेवलप कंट्री, प्रगति और विकास की दुनिया में नाम रखा है। यूरोप को पूरी तरह वो एक प्रकार से मोटिवेट करने वाली जगह है। आज इटली ने गुजरात के साथ 3 एमओयू किए। मित्रों, इटली गुजरात में डेवलपमेंट के मॉडल के लिए 3 एमओयू करे, ये अपने आप में मित्रों बदलते हुए मिजाज का परिचय करा रहा है। मित्रों, और इसी घटनाओं का एनालिसिस करके मैं कह सकता हूं कि 2015 मैं हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर के रूप में देख सकता हूं। उसे देखने के लिए मेरे पास कारण है, कुछ बातें हैं जो बल देती हैं। मित्रों, सामान्य रूप से कभी कभी मैं हैरान होता हूं, कुछ हमारे मित्र चर्चा करते रहते हैं कितने एमओयू हुए, कितना रियलाइज हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। इस सवाल पूछने वालों को मैं पूछता हूं, यार तुम 10 लाख रुपए का घर बनाते हो, कितना साल जाता है? खुद के पैसे हैं, बीबी को पूछ लोगे तो निर्णय करना सुविधाजनक है और किसी को पूछना नहीं होता है। और एक बार बीबी को जगह पसंद आ गई तो घर बन भी जाता है। मित्रों, 10 लाख का मकान बनाने के लिए आपको 3-3 साल चले जाते हैं। दोस्तों, 3-3 साल चले जाते हैं। यहां हजारों करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट होता है और ये धरती पसंद करके लगते हैं। मित्रों, इस बात को समझना होगा।